بات کر رہے ہیں گجر پرتیہاروں کی۔ تو ہرش وردھن کی مرتیو اور ہونوں کے آکرمنوں کے اپرانت جن راجیہ ونشوں نے ہون آکرمن سے ہوتے ہوئے نقصان اور بھارت کی بکھر چکی راجنیتک ایکتا کو پنः استھاپت کرنے کا پریتن کیا ہے، ان میں گجر پرتیہار راجونش کا ستان اتنت وششٹ ہے۔ گرجر پرتیہار راجونش نے 6 سے 12ویں شتابدی تک ودیشی آکرمنوں سے بھارت بھومی کی سفلتا پوروک رکشا کی ہے۔ گجر جاتی کا پرتم ابھیلیکھی الیکھ ہمیں چالوکیہ شاسک پلکیشن دویتیہ کے درباری روی کیرتی جین دوارا رچت ایہول ابھیلیکھ سے ملتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اتپتی ایوم نواس استھان۔ نیل کنڈ، رادھن پور، دیولی، کرہاڑا ہے۔ ابھیلیکھوں میں پرتیہاروں کو گجر کہا گیا ہے۔ اسکند پران میں پنچ درویڑوں میں گجر بھی شامل ہیں۔ پورو مدھیہ کال میں آئے عرب یاتری انہیں جورج یا ایل گجر گجر شبد کی اپبھرش شبد کہتے ہیں۔ وہیں چینی یاتری ہین سونگ انہیں کو چے لو یا گجر کہتا ہے۔ مہر بھوج کے گوالیار ابھیلیکھ میں ناگ بھٹ کو رام کا پرتیہار و وشودھ چھتریہ کہا گیا ہے۔ اس ابھیلیکھ میں پرتیہاروں کو رام کے بھائی لکشمن کا ونشج بتایا گیا ہے۔ یہی بات کک کے گٹھیالہ ابھیلیکھ میں دہرائی گئی ہے، لیکن اس ابھیلیکھ میں پرتیہاروں کے مول پروش ہریش چندر کو برہمن بتایا گیا۔ ہریش چندر کے 2 رانیاں تھیں، ایک برہمنی دوسری چھترانی۔ چھترانی کا نام بھدرا تھا، اس سے اتپن پرتیہار چھتریہ کہلائے۔ گجر پرتیہاروں کی اتپتی کو لے کر ودوان ایک مت نہیں ہے۔ کچھ پرمکھ اس پرکار ہیں: ایرانی مول کے کنیڈی، شنک و یوچی جاتیوں کے ونشج کنیگھم، ہونوں کے ونشج اسمتھ بیولر، ہرنیل، ودیشی گجر جاتی کے ونشج ڈاکٹر بھنڈارکر، بھارتی مول کے ڈاکٹر گوپی ناتھ شرما، ڈاکٹر دشرتھ شرما کی ایم منشی۔ پرتیہار شاسکوں کے جودھ پور و گٹھیالہ شیلالیکھوں کے آدھار پر ان کا مول نواس ستان گجراترا پچھم راجستھان کا ایک بھاگ کو مانا جاتا ہے۔ ایچ سی رے کا ماننا ہے کہ ان کا مول نواس ستان منڈوو جودھ پور تھا۔ راشٹرکوٹ شاسک اموگ ورش کے سنجن تامر پتر میں الیکھ ہے کہ جب دنتی دورگ نے مہادان یجنا کیا تھا تب اس نے گجر راجا کو اجین میں اپنا پرتیہار دوارپال بنایا تھا۔ ساتھ ہی جین گرنتھ ہری ونش پران بھی گجر پرتیہاروں کو اونتی اجین کا شاسک بتاتا ہے۔ زیادہ تر ودوان اس دوسرے مت ارتھات اجین کو ہی گجر پرتیہاروں کا مول نواس مانتے ہیں۔ پرتیہاروں کی شاخائیں۔ پرتیہار راجونش کی انیک شاخائیں تھیں۔ نیرچی نے پرتیہاروں کی سبھی شاخاؤں کا الیکھ کیا ہے، جن میں منڈور، جالور، راجوگڑھ، کنوج، اجین اور بھنڈوج کے پرتیہار ادھک پرسدھ تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں منڈور کے پرتیہار۔ پراچینتا و مہتو کی درشٹی سے پرتیہاروں کی وبھن شاخاؤں میں راجستھان میں ادت ہونے والی منڈور کی پرتیہار شاخا سب سے مہتوپورن ہے۔ اس سے سبندھت جانکاری 1836 عیسوی کے جودھ پور شیلالیکھ اور گٹھیالہ کے 2 شیلالیکھوں سے ملتی ہے۔ ان شیلالیکھوں سے گیات ہوتا ہے کہ پرتیہاروں کے گرو ہریش چندر نامک برہمن کے 2 پتنیاں تھیں، ایک برہمنی دوسری چھترانی۔ ہریش چندر کو روہیلا سدھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہریش چندر کی برہمن پتنی سے اتپن سنتان برہمن پرتیہار کہلائے اور چھترانی پتنی بھدرا کی سنتان چھتریہ پرتیہار کہلائے۔ بھدرا سے ہریش چندر کے 4 پتر ہوئے: بھوگ بھٹ، کدل، رجل اور دود۔ ان چاروں بھائیوں نے مل کر مانڈویہ پور منڈور کا پرانا نام کو جیتا۔ ڈاکٹر بیجناتھ پوری اور ڈاکٹر اوجھا نے ہریش چندر کا سمے 6ویں شتابدی کے آس پاس مانا ہے۔ رجل اسی سے منڈور کے پرتیہاروں کی ونشاولی شروع ہوتی ہے۔ پوتا ناگ بھٹ پرتھم ناہر اس ونش کا پرتم پراکرمی شاسک تھا۔ انہوں نے اپنے راجیہ کا وستار کیا اور منڈور سے 60 میل دور میڑتا کو اپنی راجدھانی بنایا، پرنتو میڑتا کی راجدھانی بن جانے پر بھی منڈور کا مہتو کم نہیں ہوا، کیونکہ ناگ بھٹ پرتھم کے پتر تات نے منڈور میں ہی ایک سنیاسی کے روپ میں رہنا پسند کیا۔
नाग भट्ट के उत्तराधिकारियों के संबंध में ये विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं है। इस वंश की 10वीं पीढ़ी में सिल्लुक नामक शासक हुए, जिसने वलमंडल के शासक देवराज भाटी को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार किया। सिल्लुक के दो रानियां थी, भाटी रानी पद्मिनी और दूसरी रानी दुर्लभ देवी। इन दोनों से सिल्लुक को क्रमशः दो पुत्र बाउक और ककुक हुए। सिल्लुक के बाद इस राजवंश का अगला महत्वपूर्ण शासक बाउक बना। उसने शत्रु राजा मयूर को खूपा के युद्ध में पराजित किया। इसी बाउक ने 1837 ईस्वी की जोधपुर परिस्थिति में अपने वंश का वर्णन किया है। यह परिस्थिति मंडोर के एक विष्णु मंदिर में स्थित थी, जिसे बाद में जोधपुर नगर के कोर्ट में लगवा दी गई। बाउक के पश्चात उसका भाई कक्कुक प्रतिहार शासक बना। इन्हें गठियाले के शिलालेखों 1861 ईस्वी को उत्कीर्ण करवाया गया था। इन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि वह मरु, मारवाड़, माड़, जैसलमेर, वल्लभ, तमणी, मालानी, अजय, मध्य प्रदेश और गुजरात प्रदेशों में काफी लोकप्रिय था। विद्वानों की मान्यता है कि संभवतः इनमें से कुछ क्षेत्रों पर उसका राजनीतिक प्रभाव भी था। कक्कुक द्वारा गठियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित करवाए गए थे। कक्कुक के पश्चात के मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। 1145 ईस्वी के सहजपाल चौहान के मंडोर अभिलेख से ज्ञात होता है कि 12वीं शताब्दी के मंदिर में मंडोर के आसपास के क्षेत्रों पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। फिर भी मंडोर का दुर्ग काफी समय तक प्रतिहारों की इंदा शाखा के अधिकार में बना रहा, किंतु इंदा शाखा के प्रतिहारों ने हमीर परिवार के अनवरत आक्रमणों से परेशान होकर मंडोर के दुर्ग को 1935 ईस्वी में राव वीरम राठौड़ के पुत्र चुंडा को दहेज में दे दिया। इसके साथ ही मंडोर के प्रतिहारों का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया और धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र मारवाड़ के राठौड़ों के आधिपत्य में चला गया। उसके बाद आता है जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखीय साक्ष्यों जैसे ज्ञात होता है कि ये तीनों ही वंश एक ही कुल के थे और मंडोर के प्रतिहारों से घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हरिश्चंद्र के समय से ही उसके वंशज अपनी सुविधा अनुसार राजस्थान, गुजरात, मालवा, कन्नौज आदि स्थानों पर बसने लगे थे, जिन्होंने अनुकूल अवसर पाकर इन क्षेत्रों में अपने अपने राज्य स्थापित किए। डॉक्टर ओझा का कथन है कि इन प्रतिहारों ने सर्वप्रथम 739 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों से भीनमाल छीना और फिर आबू, जालोर आदि क्षेत्रों को जीता। इसके पश्चात उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और उसके पश्चात उन्होंने कन्नौज को जीतकर कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित किए। किंतु शिलालेखों और साहित्य के साक्ष्यों में विभिन्न राजधानियों के विवरण तथा शासकों के एक जैसे नामों के उल्लेख के कारण इस वंश के शासकों का क्रमबद्ध इतिहास जानना मुश्किल है। फिर भी हम पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज के प्रतिहारों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आते हैं कन्नौज के प्रतिहार। उज्जैन के प्रतिहार एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उज्जैन के प्रतिहारों की शक्ति का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उज्जैन के प्रतिहारों की शक्ति का उदय नागभट्ट 730 से 760 ईस्वी के नेतृत्व में हुआ। नागभट्ट प्रथम का दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था। इन्हें जालोर, उज्जैन व कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। अभिलेखों में इस राजवंश का संबंध राम के भाई लक्ष्मण से मानकर उसे क्षत्रिय बताया गया है।
साहित्य कृतियों में भी इस वंश के शासकों को रघुकुल तिलक और रघुकुल मुक्तामणि आदि कहा गया है। इस शाखा के मूल निवास के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह वंश भी किसी न किसी रूप में मंडोर के प्रतिहारों से संबंधित था। नागभट्ट की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमणों का सफल प्रतिरोध करना था। भोज के ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने मलेच्छ सेना को पराजित किया था। ग्वालियर प्रस्तुति में भी नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक नारायण मलेच्छ यानी अरब आक्रमणकारी कहा गया है। अरब लेखक अल बलादूरी का कथन है कि खलीफा हाशिम के सेनापतियों ने अनेक प्रदेशों पर विजय की थी, किंतु वह उज्जैन को नहीं जीत पाए। इस कथन की पुष्टि नौसारी के दान पत्रों से भी होती है। इसने सिंध से अरबों को खदेड़ दिया। इसके पश्चात इसने बड़ौद पर भी विजय प्राप्त की। राष्ट्रकूटों से युद्ध। ऐसा प्रतीत होता है कि नागभट्ट प्रथम को अपने समकालीन दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष करना पड़ा था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था और उस अवसर पर उन्होंने गुर्जर नरेश को प्रतिहार द्वारपाल नियुक्त किया था। यह गुर्जर नरेश नागभट्ट प्रथम प्रतीत होते थे। उसके बाद कक्कुक या ककुस्त। नागभट्ट प्रथम के पश्चात उनका भतीजा ककुक उज्जैन का शासक बना। उसके संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद देवराज ककुक के उपरांत उसका छोटा भाई देवराज उज्जैन के सिंहासन पर बैठा। ककुक और देवराज का शासन काल 760 से 783 ईस्वी तक रहा। वत्सराज 783 से 795 ईस्वी। देवराज के बाद उनके पुत्र वत्सराज भूमिका देवी से उत्पन्न उज्जैन का शासक बने। ओसिया और दौलतपुर अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने बंडी जाति को पराजित करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात उसने कन्नौज पर विजय प्राप्त की, किंतु कन्नौज पर अधिकार के लिए इन्हें पाल नरेश धर्मपाल से संघर्ष करना पड़ा। यह युद्ध प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट शक्तियों के बीच हुए त्रिकोणीय संघर्ष का प्रारंभ था। इस समय कन्नौज पर इंद्रराज युद्ध शासन कर रहे थे और वत्सराज तथा धर्मपाल दोनों ही कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। राजनपुर लेख भंडोच ताम्रपत्र और पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस संघर्ष में वत्सराज विजय भी हुए, किंतु कुछ समय बाद ही वत्सराज को राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव द्वितीय के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में वत्सराज बुरी तरह से पराजित हुए और उसे मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी। ध्रुव ने इसी समय पाल नरेश धर्मपाल को भी पराजित किया और इसके पश्चात ध्रुव अपने राज्य लौट गए। ध्रुव के लौटते ही वत्सराज की संकटापन्न स्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इंदिरा युद्ध को हटाकर चक्रायुध को पुनः वहां का राजा बना दिया। इस पराजय से उज्जैन के प्रतिहारों का राज्य मध्य राजपुताना तक सीमित हो गया। वत्सराज को जवालापुर या जाबालीपुर जालौर को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुंवलयमाला के लेखक उद्योतन सूरी कुंवलयमाला की रचना भीनमाल जालौर में हुई थी। वह हरिवंश पुराण के लेखक जीनसेन वत्सराज के ही समकालीन थे। मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इसे रणहस्तीन या रत्नहस्तीन कहा गया है। वत्सराज से मतानुयायी था और इसने ओसिया जोधपुर में एक तालाब और महावीर स्वामी को समर्पित एक जैन मंदिर, पश्चिम भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर है, वो बनवाया था। उसके बाद आते हैं नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी। वत्सराज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार शासक बना। नागभट्ट को सर्वप्रथम राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय के हाथों पराजित होना पड़ा था। राष्ट्रकूटों से पराजित होने पर भी
नाग भट्ट निराश नहीं हुए और अवसर पाकर कुछ समय पश्चात उसने अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर लिया और उचित अवसर देकर कनौज के साथ चक्रा युद्ध पर 1816 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागभट्ट ने इस युद्ध में चक्रा युद्ध को पराजित करके आयुध वंश को समाप्त कर दिया। इस विजय के पश्चात कनौज प्रतिहारों की नई राजधानी बन गई। इनका दरबार भी नागावलोक वलोक का दरबार कहलाता है। ग्वालियर अभिलेख तथा प्रबंध कोश व खुमाण रासो नामक साहित्य के कृतियों से ज्ञात होता है कि नागभट्ट ने अपने सामंतों गोविंद राज साहमान गुवैक प्रथम खुमाण गुइल आदि के सहयोग से पश्चिमी भारत के मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया था। गुवैक प्रथम द्वारा पराजित सिंध का गवर्नर बेग वारिस था। निसंदेह बनाग भट्ट द्वितीय अपने वंश का बड़ा प्रतापी शासक था। तभी तो बुच्च कला अभिलेख 1815 ईस्वी में उसे परम भट्ट तारा के महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। नाग भट्ट है वो द्वितीय ने पुष्कर के घाटों का निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है रामभद्र 833 से 836 ईस्वी। चंद प्रभ सूरी द्वारा रचित प्रभावक के चरित्र के अनुसार 1833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। नागभट्ट द्वितीय के उपरांत उनका पुत्र रामभद्र कन्नौज की गद्दी पर बैठा। उसके 3 वर्ष का अल्प शासन काल प्रतिहार शक्ति के हास्य का काल था। उसके बाद आए मिहिर भोज प्रथम 1836 से 1885 ईस्वी। मिहिर भोज इसी वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। यह रामभद्र का पुत्र था। इसकी माता का नाम अप्पा देवी था। इनका प्रथम अभिलेख बड़ा अभिलेख है जिसकी तिथि 893 विक्रम संवत 1836 ईस्वी है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति है जिससे इस वंश के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी स्थायी राजधानी कन्नौज को बनाया। कश्मीरी कवि कलहन की राज तरंगिणी से भी मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया जिसने अरबों को रोक दिया था। ग्वालियर अभिलेख में इनकी उपाधि आदिवरह मिलती है। दौलतपुर अभिलेख इन्हें प्रभास कहता है परंतु इन्होंने अपनी मुद्राओं पर आदिवरह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई थी। इन्हें प्रतिहार वंश का ही नहीं वरन प्राचीन भारतवर्ष का एक महान शासक माना जाता है। पाल व राष्ट्रकूटों से युद्ध। मिहिर भोज को अपने समकालीन पाल नरेश देवपाल से संघर्ष करना पड़ा किंतु इस संघर्ष के परिणामों के संबंध में पाल और प्रतिहार साक्ष्यों में परस्पर विरोधी वृत्तांत मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः मिहिर भोज के समय में पालों और प्रतिहारों के मध्य दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा जिसमें कभी एक पक्ष को और कभी दूसरे पक्ष को सफलता मिलती रही। मिहिर भोज को भी अपने समकालीन राष्ट्रकूटों नरेशों अमोघ वर्ष और उसके उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय से भी संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में प्रारंभ में तो उनको सफलता मिली किंतु बगुआ अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसके बाद राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा के सामंत द्वितीय ने मिहिर भोज को पराजित कर दिया। मिहिर भोज को इसी समय कलचूरी नरेश के हाथों भी पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के कुछ समय बाद मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों पर पुनः आक्रमण किया किंतु इस संघर्ष का कोई स्थायी परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। कभी प्रतिहार तो कभी राष्ट्रकूट विजय प्राप्त करते रहे। मिहिर भोज राष्ट्रकूटों को तो स्थायी रूप से पराजित नहीं कर रह सके किंतु उन्होंने कालिंजर शासक जय शक्ति चंदेल मंडोर शासक बाहुक कलचूरी शासक गुणाम बोधिदेव गोहिल शासक हर्षराज आदि को अपनी सत्ता स्वीकार करने को बाध्य किया। इनकी विजय के संदर्भ में कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने तो केवल विंध्य भूभृत
वृत्त पहाड़ के विस्तार को ही रोका था, किंतु भोज ने अनेक नरेशों पर आक्रमण कर शासन किया और इस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने से भी वह अधिक समझा। स्कंद पुराण के अनुसार मीर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्य बाहर अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर सिंहासन त्याग दिया था। 1851 ईस्वी में सुलेमान नामक एक ही अरब यात्री ने मिहिर भोज के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत किया। वह उसे जूर्ज गुज्जर देश कहता है। सुलेमान मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताता है और उसके साम्राज्य की प्रशंसा करता है। उसके कथनानुसार मिहिर भोज के राज्य में सोने चांदी को बहुत सी खानें थी। उनका राज्य चोरी डकैती से मुक्त था। अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों की रक्षा के लिए उसने योग्य सामंतों को नियुक्त किया। इनमें से गुणाम देव, हर्षराज, कक्कुक और बाहुक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके बाद आए महेंद्रपाल प्रथम 885 से 890 ईस्वी। मिहिर भोज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रतिहार सिंहासन पर बैठा। इसका महाराज कवि राजशेखर इसे रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र आदि विरोधों से संबोधित करता है। इनकी माता का नाम चंद्रा भट्टारिका देवी था। इसने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराज धीराज, परमेश्वर आदि उपाधियों की धारणा की थी। राम गया, गुनेरिया, इट्टरखोरी और राजशाही अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मगध और उत्तरी बंगाल के प्रदेश महेंद्रपाल के अधिकार में थे। चूंकि महेंद्रपाल के पिता मिहिर भोज का उत्तर प्रदेश के बाहर कोई अभिलेख नहीं था, अतः स्पष्ट है कि यह विजय निश्चय ही महेंद्रपाल ने की होगी। काठियावाड़ में ऊना नामक स्थान पर महेंद्रपाल के 2 अभिलेख मिले जिनसे स्पष्ट है कि सौराष्ट्र का प्रदेश महेंद्रपाल के आधिपत्य में था। कलहण की राज तरंगिणी से ज्ञात होता है कि महेंद्रपाल ने तकीय वंश को पराजित करके पश्चिमी पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था, किंतु कालांतर में कश्मीर नरेश शंकरवर्मन ने महेंद्रपाल से इन प्रदेशों को छीनकर पुनः तकीय वंश को दे दिया। फिर भी करनाल पर महेंद्रपाल का अधिकार बना रहा। उत्तर में महेंद्रपाल का साम्राज्य हिमालय की तराई तक विस्तृत था और उत्तर पश्चिम में उसकी सीमाएं करनाल तक जाती थी। दक्षिण में बुंदेलखंड उसके साम्राज्य के अंतर्गत था। पूर्व में मगध और बांग्लादेश के राजशाही जिले के उत्तरी भाग पर उनका अधिकार था। पश्चिम में सूर क्षेत्र में उनकी प्रभुता स्वीकार की जाती है थी तथा दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी के निचले भाग तक उसका आधिपत्य था। महेंद्रपाल स्वयं विद्वान तो थे ही, साथ ही साथ वह विद्वान के आश्रयदाता भी थे। संस्कृत का प्रकांड विद्वान राजशेखर उनका राजकवि था। यही नहीं, राजशेखर के एक ग्रंथ कपूर मंजरी से प्रकट होता है कि राजशेखर महेंद्रपाल का गुरु भी था। राजशेखर ने जिन ग्रंथों की रचना की उनमें कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विद्वसार भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास, प्रचंड, पांडव और भूमल कोश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके बाद आते हैं भोज द्वितीय 910 से 913 ईस्वी। अभिलेखों के साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों का मानना है कि महेंद्रपाल की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। इस उत्तराधिकार संघर्ष में भोज विजयी होकर कनौज के सिंहासन पर बैठा। बिलहरी अभिलेख के अनुसार इस संघर्ष में भोज को अपने चेदी सामंत कोकल देव प्रथम की महत्वपूर्ण सहायता मिली थी, किंतु भोज द्वितीय लंबे समय तक राज्य नहीं कर सके क्योंकि उसके भाई महिपाल ने अपनी शक्ति को संगठित करके चंदेल नरेश हर्षदेव की सहायता से भोज पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में भोज पराजित हुए और महिपाल कनौज के सिंहासन पर बैठा।
اس کی پشٹی کے ڈھنگ سے کھجوراہو ابھیلیکھ سے ہوتی ہے، پرنتو ابھیلیکھ میں مہیپال کا نام چھتیپال دیو بتایا ہے۔ لگ بھگ سبھی اتہاسکار اس نام کی سامتا سے سہمت ہیں۔ مہیپال پرتھم، جو مہیپال پرتھم ہے وہ 913 سے 943 عیسوی۔ مہیپال کو گدی پر بیٹھتے ہی اسے اپنے ونش کے پرمپراگت شترو راشٹرکوٹوں سے یدھ کرنا پڑا، جس میں وہ راشٹرکوٹوں کے ہاتھوں پراجت ہوا۔ کھمبھات ابھیلیکھ اور پمپکرت پمپاوارت کے انوسار راشٹرکوٹ نریش اندر ترتیہ نے مالوا پر آکرمن کرکے اجین پر ادھکار کر لیا اور یمنا ندی کو پار کرکے مہودے نگر کنوج کو نشٹ بھرشٹ کر ڈالا۔ مہیپال ان آکرمنوں کا سامنا نہیں کر سکا اور راجدھانی چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، پر ہمیشہ کی طرح راشٹرکوٹ اس وجے کے بعد بھی واپس اپنے راجیہ دکشن بھارت میں چلے گئے۔ اس استھتی کا لابھ اٹھا کر مہیپال واپس لوٹ آیا اور اس نے اپنی راجدھانی کنوج اور اس کے نکٹورتی پردیشوں پر پنہ ادھکار کر لیا۔ اپنی گدی کو پنہ پراپت کر مہیپال نے اپنی شکتی وردھن کا پریاس کیا۔ ایک وجیتا کے روپ میں اس نے اپنے پرمپراگت شترو راشٹرکوٹ نریش گووند ستورت پر آکرمن کیا۔ مہیپال نے اپنے گوہی سامنت بھٹ کو بھیج کر گووند ستورت کو پراست کر دیا۔ اس کی پشٹی 400 ابھیلیکھ 1813 عیسوی سے ہوتی ہے۔ کہلا ابھیلیکھ سے پتہ چلتا ہے کہ مہیپال نے کلچوری سامنت بامن کو بھیج کر دھارا نگری پر ادھکار کر دیا۔ پرتیہار راشٹرکوٹ سنگھرش کی پشٹی ابھیاتری ایل مسعودی بھی کرتا ہے۔ اس کا کتھن ہے کہ بہور مہیپال پرتھم اور بلہر راشٹرکوٹ میں بڑی شتروتا تھی اور بلہر کے آکرمن کے بھے سے بہور نے اپنے راجیہ کی دکشینی سیما پر ایک سینا تعینات کی تھی۔ راجشیکھر مہیپال کا بھی راجکوی تھا۔ اس نے مہیپال پرتھم کو رگھوکل مکٹ منی کی سنجھا دی اور اسے آریہ وٹ کا مہاراجا دھیراج کہا ہے۔ 915 عیسوی میں یہ عرب یاتری المسعودی بھارت آیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ بہور مہیپال پرتھم نے 4 سیناؤں کا سنگٹھن کیا تھا۔ ان میں سے ایک سینا اتر میں مسلمانوں کے ورودھ نیوکت کی گئی تھی اور دوسری سینا دکشن میں بلہر راشٹرکوٹوں کے ورودھ۔ مہیپال پرتھم کے سرکشت کبیر راجکیکر نے اپنے گرنتھ پرچنڈ پانڈو میں اپنے سوامی کی رمٹ، پولوت، مورل، میولے، کیرل، کنتل، اڑیسہ آدی جاتیوں اور چھیتروں پر وجیوں کا الیکھ کیا۔ مہیپال کے اترادھیکاری اور پرتیہار شکتی کا پتن۔ مہیپال کے پశ్چات پرتیہاروں کی شکتی کا دھیرے دھیرے پتن ہو جاتا ہے۔ مہیپال کے بعد اس کا پتر مہیندر پال دویتیہ 945 سے 948 عیسوی پرتیہار نریش بنا۔ اس کے پశ్چات دیوپال 948 سے 49 عیسوی شاسک بنا۔ وہ اتیانت نربل شاسک تھا۔ اس کے سمے میں چندیل شاسک یشو ورمن نے پرتیہاروں کے انیک پردیشوں پر ادھکار کر لیا۔ دیوپال کے پశ్چات سمبھوتः کرمشಃ ونائک پال 953 سے 954 عیسوی، مہیپال دویتیہ 955 سے 960 عیسوی اور وجے پال 960 سے 990 عیسوی پرتیہار شاسک بنے۔ وجے پال کے پశ్چات راجیہ پال 990 10 سے 19 عیسوی پرتیہار شاسک بنا۔ اس کے سمے میں محمود غزنوی نے کنوج پر آکرمن کیا۔ راجیہ پال اس آکرمن سے آتنکت ہو کر بنا لڑے ہی کنوج چھوڑ کر بھاگ گیا۔ راجیہ پال کے کائرتاپورن کاریہ کی پرتکریا سوروپ بھارتیہ راجاؤں نے چندیل شاسک ودیادھر کے نیترتو میں ایک سنگھ بنا کر راجیہ پال پر آکرمن کرکے اس کا وَدھ کر دیا اور اس کے پتر تریلوچن پال 1019 سے 1027 عیسوی کو کنوج کے سنہاسن پر بٹھا دیا۔ راجیہ پال کی ہتیا کا سماچار پا کر محمود نے 1019 عیسوی میں پنہ کنوج پر آکرمن کیا، جس میں تریلوچن پال پراست ہوا۔ البرونی کے ورنن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ
इस समय गुर्जर प्रतिहारों की स्थिति विकट थी। उनकी राजधानी भी कन्नौज में न होकर बारी बारी सरयू रामगंगा नदी के संगम पर थी। त्रिलोचन पाल के बाद कन्नौज का नरेश कौन बना, यह स्पष्ट है। विद्वानों का मत है कि इसके उपरांत यशपाल कन्नौज का शासक बना। यह प्रतिहार वंश का अंतिम नरेश था। इसके बाद 193 ईस्वी में गढ़वाल नरेश चंद्र देव ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर प्रतिहारों के स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व की इतिश्री कर दी। इसके पश्चात प्रतिहार गढ़वालों, राठौड़ों और चौहानों के सामंत मात्र रह गए। इस प्रकार महान गुर्जर प्रतिहार सत्ता का अंत होता है। प्रसिद्ध इतिहासकार B.N. पाठक तो महेंद्रपाल प्रथम को हिंदूवाद का अंतिम महान हिंदू सम्राट स्वीकार करते हैं। प्रतिहार शिलालेखों में इनके पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। अलवर जिले के राजोगढ़ से 960 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है प्रतिहार शासक मंथन देव का, जो राजोरगढ़ में भी प्रतिहार शासन की सूचना देता है। राजोरगढ़ के प्रतिहार कन्नौज के रघुवंशी शासकों के संबंधित थी। स्वयं गढ़ में गई जहाँ कानड़ देव ने उसका स्वागत किया, परंतु पुत्र से उसका विवाह करने से इनकार कर दिया। हताश होकर राजकुमारी दिल्ली लौट गई। कुछ वर्षों के उपरांत अलाउद्दीन ने फिरोजा की एक तिहाई गुल बिहिस्त को आक्रमण के लिए भेजा। उससे यह कहा गया कि वीरम बंदी हो जाए तो जीवित लाया जाए, यदि मारा जाए तो उसका सिर लाया जाए। खिलजी सेना विजयी रही। वीरम वीर गति को प्राप्त हुआ तो उसका सिर दिल्ली ले जाएगा। वहां फिरोजा ने उसका अंतिम संस्कार करके स्वयं यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। अलाउद्दीन और सिवाना का साका। सिवाना दुर्ग और जालोर दुर्ग की कुंजी है। इस समय सिवाना दुर्ग का दुर्गपति शीतल देव था। जुलाई 1308 ईस्वी को अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने दुर्ग को घेर लिया और शीतल देव के सेनापति बावला को अपनी ओर मिला लिया। बावला ने दुर्ग में स्थित मामादेव कुंड में गो रक्त मिला दिया। इसके बाद दुर्ग रक्षकों ने खिलजी सेना के साथ आर पार की लड़ाई का निर्णय लिया। शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया व मीणादेव के नेतृत्व में जौहर हुआ। खिलजी के सेनापति नाहर खां और भोज भी इस संघर्ष में मारे गए। इस विजय के बाद अलाउद्दीन ने यह दुर्ग कमालुद्दीन को सौंप दिया व इसका नाम खैराबाद रखा। जालोर दुर्ग का दुर्पतन। सिवाना विजय के बाद खिलजी की सेना ने मारवाड़ को उजाड़ा। उस समय भीनमाल चौहान कालीन विद्या का केंद्र था, जिसे दूसरी ब्रह्मपुरी नगरी कहा जाता था। खिलजी की सेना ने इसे जला दिया। जालोर दुर्ग पर जब खिलजी सेना ने आक्रमण किया, उस समय खिलजी सेना का सेनापति मलिक नाइब कमालुद्दीन गुर्ग था। कानर देव के सेनापति दहिया बिका ने कानरदेव के साथ विश्वासघात किया व दुर्ग की गुप्त सुरंग का रास्ता खिलजी सेना को बता दिया। दहिया के इस विश्वासघात का पता चलने पर उसकी पत्नी हीरा दे ने दहिया को मार डाला। कानरदेव के नेतृत्व में चौहान सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए तथा जेतल देव के नेतृत्व में किले की त्रियों ने जोहर किया। जालोर का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने जलालाबाद रख दिया। अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग में एक मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद का नाम तोप मस्जिद है। कानर देव के परिवार में एकमात्र सदस्य कानर देव का भाई मालदेव बचा। इसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग खिजर खां के स्थान पर मालदेव सोनगरा को सौंप दिया, जिसे बाद में अमीर ने मालदेव के पुत्र से छीन लिया था। थैंक यू।